Good afternoon, everyone. Good afternoon. So today we are going to start with our fourth chapter, and that is measures of dispersion. In the previous chapter, we have already learned how to find mean, how to find median, how to find quartile, decile, percentile, mode. Yes? So today we are going to start this new chapter, that is measures of dispersion, in which we are going to learn about the measures, absolute measure, relative measure for finding. We are going to learn about range. We are going to learn about mean deviation. We are going to learn about quartile deviation, and we are going to learn about the standard deviation. Okay, so starting with range. Range we have already learned. We are learning from the very first chapter. Whenever we have to find range, we have to find the biggest observation and the smallest observation. The highest will be minus from the lowest, and we will find the range. So what is the formula for range? XH minus XH means the highest value. If we have the observation, उसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढेंगे और सबसे छोटा वाला नंबर ढूंढेंगे. Range is the difference between it, right? The highest observation minus the lowest observation, we called it as range. And when it is told to you to find absolute measure, if it is told to you to find absolute measure, we will find range. This is absolute measure. Okay. In range, if you are told to find the relative measure, if in range you are found relative measure, then we will find coefficient of range. What we will find? Coefficient of range. We will find coefficient of range, and the formula for it is XH minus XL will be divided by XH plus XL. We will learn two measures in all the things, even in range, in mean deviation, quartile deviation, standard deviation, in all the sums. What we will learn? We will learn about the absolute measure, and we will learn about the relative measure. In the case of range, when we are finding range, if the data is raw data or the data is discrete data, and the data can be continuous data. When the data is raw data, what we will do? We will search the highest value, we will search the lowest value, and we will find range. And range, what is the range? Absolute measure. Okay, what is it? Absolute measure. Here XH minus XL. In discrete data, what will be given? X column will be given to you, frequency column will be given to you. There will be an X column, there will be a frequency column. Again, you will do the lowest value and highest value, you will search from it, and highest minus lowest will be your range. What will you do in the continuous classes? Continuous means classes is given to you, right? When classes is given to you, suppose my first class is 0 to 10 and my last class is 50 to 60. So 60 is the highest value. So this is my XH and 0 is my XL. Is it clear? This is when it is told to you, you have to find absolute measure. If you are told to find the relative measure, then in relative measure, what we will do is XH minus XL and the same XH plus XL. In short, we need only two values, and that is the highest value and the lowest value. This is what? This is range, absolute measure and relative measure. In all the questions, in mean deviation, quartile deviation, standard deviation, everywhere we will find the absolute measure and we will find the relative measure. This is about range. Our next topic will be about mean deviation. Okay. Next topic is mean deviation. Means again in mean deviation, the data can be either raw, the data can be either discrete, and the data can be either continuous data. Data can be anything. Okay. First of all,
इन डिस्क्रीट डेटा x कॉलम इज गिवन टू यू, x वाला कॉलम दिया गया होगा, ठीक है. फॉर मीन डेविएशन वी डिनोटेड बाय md एंड द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन इज summation modulus x minus x bar will be divided by n. now करना क्या है, इसमें x वाला कॉलम आपको दिया है, ठीक है, x वाला कॉलम आपको दिया है. what you have to make is x minus x bar means you have to find first the summation of x. this is what x का टोटल क्या बोलते हैं हम उसको, summation x बोलते हैं ना. हम लोग को ढूंढना है सबसे पहले x बार. x बार कैसे ढूंढेंगे, समेशन x को डिवाइड कर देंगे किससे, समेशन x को डिवाइड कर दिया n से, x बार मिल गया. अब आपको चाहिए x माइनस x बार, मानी आपको x की वैल्यू तो दी है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू है सपोज 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे आपका जो x बार है वो 6 आया, तो आप लोग क्या करोगे, 5 को किससे माइनस करोगे, 6 से. आपका आंसर आएगा -1, 0, 1, 2, 3. अंडरस्टूड. x में से x बार को माइनस करते जाना है, ठीक है. पर हमें सिर्फ x माइनस x बार थोड़ी चाहिए, वी वांट वन मोर कॉलम वेयर इट इज मॉड्यूलस x माइनस x बार. दिस साइन वेयर वी हैव रिटर्न दिस इनटू कॉलम लाइन वाइज एंड इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉड्यूलस, all the negative values will become positive. Now you got over here -1, it will become +1. Here 0 will remain 0 and positive will remain positive only. Only negative values will be converted into positive values. So 1, 2, 3 and whatever the summation is, we will be calling it as summation modulus x minus x bar. This is the formula for mean deviation and this is absolute or relative? दिस इज एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है. तो रिलेटिव मेजर क्या है, अब रिलेटिव मेजर भी होगा, ये एब्सोल्यूट है, देन वी हैव रिलेटिव. रिलेटिव में क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. जब भी ऐसा बोला हो, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करो, लेकिन कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि भाई रिलेटिव मेजर फाइंड करो. एंड इफ इट इज टोल्ड यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव मेजर, देन यू हैव टू डिवाइड मीन डेविएशन विल बी डिवाइडेड बाय x bar. Mean deviation will be divided by x bar. Okay, you got the formula for raw data. This was the formula for raw data. Do you have frequencies in raw data? raw data में frequency रहती है नहीं, raw data में कोई frequency नहीं रहती, लेकिन discrete data में और continuous data में दोनों में frequency रहती है. एक x का कॉलम दिया जाता है और उसके बाजू में एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया जाता है. इज इट क्लियर? तो अगर हमारे पास एक x का कॉलम है और उसके बाजू में अगर एक f का कॉलम है, तो हमें x माइनस x बार तो करना ही करना है, मॉड्यूलस x माइनस x बार भी करना ही करना है, और एक कॉलम करना है जिसमें हम लोग करेंगे f इंटू, वी हैव टू डू x माइनस x बार, modulus x minus x bar, and one more column we will be having, that is f into modulus x minus x bar. अब इसका जो टोटल आएगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, summation f into modulus x minus x bar. ओके, फॉर्मूला अब तक हम लोग ने क्या लिखा था, मॉड्यूलस x माइनस x बार, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं थी. यस, रॉ डेटा में फ्रीक्वेंसी थी क्या, फ्रीक्वेंसी नहीं थी, पर इसमें फ्रीक्वेंसी है. तो अब मीन डिवीजन का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या बन जाएगा, summation f into modulus x minus x bar divided by n. समझ में आया? सेम वैसे ही करना है. कौन सा कॉलम बनेगा, x के बाद x माइनस x बार, मॉड्यूलस x माइनस x बार, एक और कॉलम बनेगा f इंटू मॉड्यूलस x माइनस x बार. माने जो आपका x माइनस x बार बना ना, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, f से मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद टोटल जो मिलेगा वो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, फॉर्मूला में, मॉड्यूलस f इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n. अब यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी का टोटल. यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 तो डिवाइड बाय 5 कर दिया, बट हियर वी हैव द फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो हमारा n हो जाएगा. एनी डाउट एवरीवन? वी आर डन विद रॉ डेटा, वी आर डन विद डिस्क्रीट डेटा. डिस्क्रीट डेटा में फ्रीक्वेंसी रहती है इसलिए हमने f डाला. अगेन कंटिन्यूअस डेटा में फ्रीक्वेंसी रहती है, ऑफ कोर्स रहती है. हम लोग को क्लास दे के रखा होगा और बाजू में f दे के रखा होगा. क्लास सपोज दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, सपोज ये सब क्लास दे के रखे हैं.
बाजू में फ्रीक्वेंसी देके रखा है, 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, ये फ्रीक्वेंसी देके रखा है। तो नाउ स्टेप्स सारे सेम जैसे हमने किए थे, x बनेगा, x माइनस एक्स बार बनेगा, मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार बनेगा, f इंटू मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार बनेगा। पर इसके लिए x कहाँ है? x तो है नहीं, हमें तो क्लासेस दिया है। तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है इस क्लासेस को कन्वर्ट करना है x में। एंड हाउ टू डू दिस? वी हैव टू फाइंड द मिड वैल्यू। नाउ x विल बी माय मिड वैल्यू, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 15, 25, 35, 45। x मिल गया, f मिल गया। अब क्या करूं? सेम जैसा डिस्क्रीट में किया था, कोई नए स्टेप्स नहीं करना है, जैसे हमने किया था वैसा ही करेंगे। मीन डेविएशन भी बहुत सिंपल है। अंडरस्टूड? क्या है हमारा फॉर्मूला? समेशन f इंटू मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। ये कब करेंगे? जब डेटा डिस्क्रीट होगा और कंटिन्यूस होगा। अगर डेटा रॉ होगा तो सिर्फ f मत डालना, स्टेप्स तो सारे सेम ही हैं। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी ऑलरेडी लर्न अबाउट रेंज, नाउ वी लर्न अबाउट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अगर एब्सोल्यूट मेजर बोला होगा तो ये करेंगे, एंड रिलेटिव मेजर बोला होगा तो जो हमने मीन डेविएशन फाइंड किया ना उसको डिवाइड कर देंगे x बार से, तो हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड। यस, starting with the next topic. The next topic that we are going to learn in this chapter is quartile deviation. You have learned in chapter 3, quartiles are divided into how many parts? 4 parts, where we will be able to find Q1, Q2, Q3. इससे ज्यादा कोई क्वार्टाइल फाइंड होती है क्या? नहीं, सिर्फ 3 ही क्वार्टाइल फाइंड होती है, इधर Q1, Q2 और Q3। क्वार्टाइल डिवीजन को हम लोग डिनोट करते हैं, Q लिखते हैं और बाजू में लिखते हैं से D, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल डिवीजन का डोनेशन। ठीक है? एंड क्वार्टाइल डिवीजन का एब्सोल्यूट मेजर जो बोलते हैं ना, एब्सोल्यूट मेजर मानी हमको क्या ढूंढना है? एब्सोल्यूट मेजर मानी क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढना है, QD ढूंढना है। क्या बोलते हैं? QD। और QD कैसे ढूंढेंगे? Q3 माइनस Q1 विल बी डिवाइडेड बाय 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये Q3 कैसे फाइंड करना वो सिखाओ क्या? नहीं, क्यों सिखाना? वी ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड Q3। Q1 कैसे फाइंड करना है पता है, बिकॉज हमारे पास अगेन डेटा कैसा रहता है? या तो रॉ, या तो डिस्क्रीट, या तो कंटिन्यूस। अगर रॉ डेटा रहेगा, फर्स्ट स्टेप अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, उसके प्लस n+1/4 ऑब्जर्वेशन करेंगे, और जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो जाके डेटा में ढूंढ लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा Q1। Q3 फाइंड करना होगा तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कब? जब ये डेटा रॉ है। पर इफ द डेटा इज डिस्क्रीट तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगेन n+1/4 ऑब्जर्वेशन करना है। लेकिन हमारे पास है x का कॉलम, हमारे पास है f का कॉलम, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा कॉलम, और वो है CF का कॉलम। एंड व्हाट इज दिस CF? CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन करते जाना है। फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद हम लोग n+1/4 ऑब्जर्वेशन किया, जो भी वैल्यू आया वो हम लोग कहाँ देखेंगे? CF के कॉलम में देखेंगे, लाइन खींचेंगे, x की वैल्यू ढूंढेंगे, वो हो जाएगा हमारा Q1। अगर Q3 ढूंढना है, अगेन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन डेटा कैसा था? रॉ था। डेटा कैसा था? डिस्क्रीट था। अगर डेटा कंटिन्यूस है तो वी हैव क्लासेस, वी हैव f, वी हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा कॉलम CF, और CF बनाने के बाद हमको सबसे पहले क्वार्टाइल क्लास ढूंढना पड़ेगा। क्वार्टाइल क्लास ढूंढने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे Q1 इज इक्वल्स टू n/4 ऑब्जर्वेशन
and Q1 formula will be L plus N by 4 minus CF upon F into C. What is ये करने के बाद हम लोग को एक तो क्वार्टाइल क्लास मिल जाएगा. ये क्वार्टाइल क्लास मिला, उसका जो लोअर लिमिट है वो है हमारा L N/4 जो हमने अभी किया था, माइनस CF माने CF के कॉलम में जो आपको क्वार्टाइल क्लास मिला था ना उसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. याद रखना हमेशा, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, भाई CF वही वाला नहीं, उसके यस द CF इज द अबव वन फ्रीक्वेंसी. द क्लास जो है क्वार्टाइल क्लास उसी का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. सो वी विल गेट फ्रीक्वेंसी इनटू C. C इज द क्लास लेंथ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास. जो भी क्वार्टाइल क्लास हमने चूज किया है उसी का फ्रीक्वेंसी, उसी का क्लास लेंथ जो है वो हमारा C है. दिस इज व्हेन इट इज गिवन टू यू टू फाइंड Q1. इफ इट इज 3, if it is 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से. किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से. सिंपल. ठीक है, वही प्रोसीजर सारा करना है. चलो, ये तो क्वार्टाइल ढूंढना सीख लिया. अब हम लोग क्वार्टाइल ढूंढना हम लोग को ऑलरेडी आता था. वी हैव जस्ट रिवाइज्ड हाउ टू फाइंड Q1, हाउ टू फाइंड Q3. कमिंग टुवर्ड्स द फॉर्मूला ऑफ QD. QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा QD का फॉर्मूला. ये है एब्सोल्यूट मेजर. कौन सा मेजर? नाउ वी हैव टू फाइंड रिलेटिव मेजर, एंड व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड रिलेटिव मेजर we will find coefficient of quartile deviation. ठीक है, and coefficient of quartile deviation का फॉर्मूला है बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं पता है? इसका जो फॉर्मूला, इसका जो आंसर आया था वो लिख लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं Q3 प्लस Q1 पर, वो गलत हो जाएगा. वाई? क्योंकि यहाँ पे 2 भी है, बट हियर वी डोंट हैव 2, राइट? सो इट विल बी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. जो भी आपने Q1 और Q3 की वैल्यूज मिली थी वो अंडरलाइन कर लेना सो दैट यू कैन गेट हाईलाइटेड. एंड व्हाट यू कैन डू इज Q3 माइनस Q1 विल बी डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. I hope you are crystal clear with all this concept. What? Range. We learn mean deviation, we learn quartile deviation. Till now the procedure was very simple, easy से आराम से फ्लो में जा रहे हैं. ठीक है, अब आता है एक और कंसेप्ट और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या लगता है इजी होगा? नहीं, सब इजी है. चलो अब करना क्या है? इफ वी आर फाइंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, एक चीज माइंड में ये रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हमेशा रूट आएगा. कोई भी बार स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट नहीं आया ऐसा नहीं बन सकता. तो यू ऑलवेज हैव रूट इन स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज बिफोर फाइंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन यू हैव टू फाइंड x बार. आपको सबसे पहले मीन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? मीन. और मीन फाइंड करने के बाद आपको देख लेना है क्या वो मीन डेसिमल में नहीं है, क्या वो जो मीन है वो डेसिमल में है, और क्या आपको क्वेश्चन वालों ने शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बोला है. तो ये आपको ध्यान से देख लेना है. सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे कि वो क्वेश्चन में आपको जो भी डेटा मिला है उसको पहले प्लस कर दो, डिवाइड बाय n कर दो और फाइंड कर दो कि जो भी आपको मिला था वो डेटा जो था वो अगर हमारा जो है वो क्या बोलते हैं x बार जो है मीन जो है हमारा, अगर वो डेसिमल में नहीं है. हम लोग 2 चीज पढ़ने वाले ना, एक तो 3 चीज, एक तो रॉ, एक तो डिस्क्रीट और एक तो कंटिन्यूस. सबसे पहले रॉ का देख लेते हैं. अगर डेटा रॉ है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को SD से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारा जो x बार मीन्स क्या? मीन. हमने कैसे मीन फाइंड किया? रॉ डेटा में मीन कैसे फाइंड करते हैं? सबको प्लस कर देते हैं, डिवाइड बाय n कर देते हैं. तो समेशन x डिवाइड बाय n हमने मीन फाइंड कर दिया और मीन हमारा होल नंबर आया, पॉइंट में नहीं आया. अगर पॉइंट में नहीं आया तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस x बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. As I already told you that you have to first of all write under root in the sum.
ठीक है, अंडर रूट तो आएगा ही, व्हेनेवर इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट विल कम। एंड ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब हमारा x बार जो है वो डेसिमल में, वेरी गुड। तो अगर हमारा x बार जो है वो डेसिमल में होगा तो अंडर रूट तो आएगा, यहाँ पे आएगा समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार स्क्वायर। ना फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिकॉल, आपके पास एक x वाला कॉलम है, आपने क्या किया, x माइनस एक्स बार बनाया, फिर आपने x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर बनाया, इसका जो है टोटल लिया और टोटल इधर लिख दिया, डिवाइड बाय n किया, उसका अंडर रूट ले लिया, आपको मिल गया SD, राइट। ये कब, जब x बार डेसिमल में नहीं आए। लेकिन अगर x बार आपका डेसिमल में आया तो बहुत सिंपल है, क्यों पता है, एक है आपके पास x कॉलम, एक ही एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, वो है x स्क्वायर का, बस एक एक्स्ट्रा ही कॉलम बनाना पड़ेगा, तो आपका सम बहुत इजी हो जाएगा कि उसका टोटल हो जाएगा समेशन x स्क्वायर वी विल डिवाइडेड बाय n माइनस x बार स्क्वायर। x बार तो फाइंड करना ही है ना, तो ही तुमको पता चलेगा भाई पॉइंट में आया है ना। तो ये हो गया बहुत सिंपल, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा कॉलम बना रहा, वो कौन सा था, एक्स स्क्वायर का। अब शॉर्टकट फॉर्मूला बोला है, क्वेश्चन वाला ने आपको डायरेक्टली बोला है कि शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करना, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन द होल स्क्वायर। अब ये डी कहाँ से नया आ गया, एक नया कॉलम आ गया डी, एक सिर्फ एक ही कॉलम दिया था x का, एक ही कॉलम दिया था x का, पर यहाँ पे तो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, जब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि शॉर्टकट फॉर्मूला से करो, या फिर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आप लोग देख रहे हो 155, 195, 160, 170, 180, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, 100 से ऊपर जा रही है। अगर वैल्यूज 100 से ऊपर जा रही है, थोड़ी लार्ज वैल्यूज है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि उसको शॉर्टकट फॉर्मूला से ही करना है, और शॉर्टकट फॉर्मूला है समेशन डी आई समेशन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन डी बाई एन द होल स्क्वायर। अब ये डी बनाए कैसे, एक्स का कॉलम आपको दिया है, बस आपके पास सिर्फ x है, राइट, आपको बनाना है di, और di बनाएंगे कैसे, ये a क्या है, a है हमारा अज्यूम्ड मीन, माने ये जो क्वेश्चन है उसमें कोई बीच वाला वैल्यू को आप a अज्यूम कर लेना और xi माइनस a कर लेना, तो आपको मिल जाएगा di, और हमें di का स्क्वायर चाहिए, तो और एक कॉलम बनेगा यहाँ पे di स्क्वायर, ठीक है। अब जो di का टोटल आया उसको हम लोग बोलेंगे समेशन di स्क्वायर और समेशन di, तो समेशन di स्क्वायर यहाँ पे चाहिए, समेशन di स्क्वायर डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन d माने क्या, d का टोटल, d का जो टोटल है तो उसको क्या बोलते हैं, समेशन d डिवाइड बाय n द होल स्क्वायर, और इसका फिर रूट ले लेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, हम लोग को मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट फॉर्मूला। सबको समझ में आया। ये सारे केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी, रॉ डेटा था ना, फ्रीक्वेंसी नहीं था, लेकिन अब अगर डेटा डिस्क्रीट हो या फिर डेटा कंटिन्यूस हो तो अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ना। तो क्या करें, अगर फ्रीक्वेंसी है कोई टेंशन नहीं है, सेम फॉर्मूलाज होगा, लेकिन हर जगह पे आगे f लग जाएगा। अब इस फॉर्मूला में अगर मैं f लगाऊं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर फॉर्मूला में f लगाओ तो समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इस फॉर्मूला में अगर f लगाओ तो समेशन fi xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। इस फॉर्मूला में मैं अगर f लगाओ तो समेशन fi di स्क्वायर बाय n माइनस समेशन fi di बाय n द होल स्क्वायर। और अगर di ढूंढने के लिए आपने कोई कॉमन डिवाइजर लिया है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो c से और आप कॉमन डिवाइजर ढूंढ लो, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट मेजर। रिलेटिव मेजर बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दो x बार से, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दोगे x बार से तो वो हो जाएगा रिलेटिव मेजर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. So what we learn about range, coefficient of range, standard mean deviation, coefficient of mean deviation,
quartile deviation, coefficient of quartile deviation, and just now we learned about standard deviation and coefficient of standard deviation. I really hope you are able to understand all this. We'll carry on with the sums in the next class. Thank you.